मेरा साहब आपका कहाँ तक पहुँचा, कितना समझ आया, कितना हो सका? कुछ ट्राई की है। जो मैं सब्सटेंस से समझा हूँ वो ये है कि सब्सटेंस इज समथिंग विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टीज। और थॉमस एक्विनस के यहाँ सब्सटेंस इज दैट हुज नेचर इज टू एग्जिस्ट नॉट इन सम सब्जेक्ट और एज ए पार्ट ऑफ एनीथिंग एल्स बट इट एग्जिस्ट इन इटसेल्फ। और सब्सटेंस जो होता है वो एसेंस और एग्जिस्टेंस का एक कंपोजिशन, एक कंपोजिट होता है। और थॉमस के यहाँ ये भी है कि a substance can have its parts as long as those parts are part of a substance. Those parts are not substance in themselves. जब वो किसी का हिस्सा है तो अपने अंदर अलग से उनका substance नहीं है. But when the substance decomposes या separate हो जाता है, those parts can be considered as substance in themselves so long as they are capable of subsisting in themselves. Like उस दिन हमने बाइक की मिसाल ली थी, a bike and its parts. So when working as a bike, so there is one substance, but जब हमने इसको decompose किया या separate parts किए, तो every part can be considered as a substance in themselves. निगार अर्जुन के यहाँ उनकी philosophy में a substance is उनकी philosophy is built upon the notion of emptiness या शून्यता उसको वो कहते हैं. And emptiness is of course always the emptiness of something. And that something Nigar Arjun in his mind is called as Sabhava, yeah, I think ये उनका इस तरह उसको लिखते हैं. And there are two main conceptual dimensions of that concept. एक ontological उनकी dimension है और जिसमें which refers to a particular way in which objects exist. और दूसरी उनकी cognitive dimension है which refers to a way in which objects are conceptualized by human beings. So within ontological dimension वो सद्भावा की तीन अंडरस्टैंडिंग्स हैं in terms of essence, in terms of substance and in terms of absolute reality. और in terms of essence का मतलब उनके यहाँ ये है कि एक ऑब्जेक्ट की कोई ऐसी प्रॉपर्टी which could not be lost without ceasing to be that very object. उसकी मिसाल है जैसे a fire is to be hot और वाटर टू बी वेट. लाइक अगर उसकी वेटनेस खत्म हो जाएगी तो वाटर ही नहीं होगा. तो उसके हाँ एसेंस का ये मतलब है. in terms of substance he criticizes the concept of substance and in terms of इस तरह से कि वो कहते हैं कि यहाँ से मुझे थोड़ा सा वैसे प्रॉब्लम है कि वो कैसे इसको क्रिटिसाइज करते हैं, उनका क्या इसका मतलब क्या है उनकी बात का. तो आगे जाके फिर वो कहते हैं कि इसको कंट्रास्ट करते हैं एक्विनस के साथ कि एक्विनस के हाँ उनकी जो उनकी ग्राउंड्स हैं, उनकी पोजीशनिंग है वो इस तरह से है कि नेसेसरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट बट दिस बीइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स. और तो इनके हाँ वो डिफरेंट है जिसके सब पार्ट्स भी ऑन्टोलॉजिकली उन्होंने बयान कर दिए हैं. रसल के बर्नार्ड रसल के रिजेक्ट्स द वेरी आइडिया ऑफ सब्सटेंस इन द ट्रेडिशनल सेंस जैसे कि थॉमस एक्विनस के यहाँ है. और आगे जाके वो एक जगह मैंने पढ़ा ही एडमिट्स 6 सॉर्ट्स ऑफ बीइंग और सब्सटेंसेस और सब्सटेंस सब्स्टिट्यूट्स उनकी अपनी जुबान में. बट इससे ज्यादा मुझे इनके यहाँ कुछ समझ नहीं आ पाई कि व्हाट एक्चुअली ही ट्राइज टू टेल. शायद आपका कहाँ तक पहुंचा था, दरमियान में वो कट गया. जी हाँ जी, sorry. So main what I was trying to say was कि while I can't necessarily prove it exactly from the text, मुझे लग रहा था कि the only commonality would be कि in terms of substance, all the authors argue for a single kind of substance, a monistic theory of substance, which runs through everything, which can then hold the various properties that exist that can exist in the world. अब वो Aquinas मुझे सबसे obvious था because of his I presume his attempts to argue for the existence of God. Bertrand Russell का तो हालांकि he's atheist, लेकिन his definition seems to fall under that, and that there's no plurality of substances existing, and that only one thing exists, which is the whole. So that would also push for a monistic
theory of substance. Nagarjuna ka mujhe it's the most difficult, but it seems like in trying to just Abhi bhai ne mentioned kiya, it seems like because everything has emptiness or like this lack of essence, one can argue that same emptiness as the main substance runs through everything. So halanki everyone seems to be arguing it from a different angle. There seems to be kind of a monistic theory of substance. सही। और रसल केस के हवाले से Russell case के हवाले से I'm not exactly sure in the text that I would point to prove. टेक्स्ट पढ़ा जी पढ़ा तो है और सही है। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है कि अगर नागार्जुन का जो बेसिक आइडिया है वो थोड़ा टेक्निकल सा वो किताब है, क्योंकि नागार्जुन न्याय पे क्रिटिक करता है। वो एक स्कूल है बुद्धिज्म का। ठीक है। नागार्जुन जिस चीज के ऊपर क्रिटिक कर रहा है वो न्याय है, जो ये नागार्जुन है इसमें। फिर नागार्जुन पे किसी ने क्रिटिक किया है, वो जो एक किताब है विलय वास्तमा। फिर वो जो राइटर है ट्रांसलेटर वो इस पे क्रिटिक है। अब नागार्जुन न्याय पे क्रिटिक करता है, नागार्जुन पे एक और शख्स क्रिटिक करता है, और उस शख्स पे जो है तो ट्रांसलेटर क्रिटिक है। ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा चैन है वो। मगर वो बात पूरी की पूरी सादी है। उसमें यह है कि जब हम कुछ कहेंगे तो लैंग्वेज जो है वो सब्सटेंस को अफर्म नहीं करता। हम कोई भी स्टेटमेंट बोलें वो स्टेटमेंट जो है रेफर सब्सटेंस को नहीं करता, वो स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन को रेफर करता है, लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन को। इसके अलावा ये नागार्जुन का पॉइंट है। ये नागार्जुन का पॉइंट है, मतलब कि लैंग्वेज नेवर रेफर्स टू सब्सटेंस। जी जी जी। तो इसमें और पूरे इक्वानास के आइडिया में क्या सिमिलरिटी है? अगर आज दोनों सिमिलर हैं तो इक्वानास जिस सब्सटेंस की बात कर रहा है वो तो लिंग्विस्टिकली बात कर रहा है, तो किसी आर्गुमेंट के तहत किसी चीज को बिल्ड कर रहा है। अगर वहां पे सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो दूसरे जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये दोनों हम कैसे हैं? I don't know. The only way I can think of is if that same, my understanding was if it's like एक ही substance, even if it's different, लेकिन अगर substance ही एक है, which can run through everything, then that would be a similarity. वैसे आपके ख्याल में सिमिलर कैसे है ये? नागार्जुन का आइडिया है और ऑगस्टाइन का भी है। मेरे ख्याल में तो शायद ये सिमिलर नहीं है, और उसकी जो आर्गुमेंट मैं समझता हूँ वो ये है कि जैसे वो सब हवा में दो डायमेंशन लेता है कि ऑन्टोलॉजिकल है और दूसरी कॉग्निटिव है। तो ऑन्टोलॉजिकल की जो तीन हिस्से वो करता है कि इनको हम तीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एसेंस एंड इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस एंड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी। तो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी मसलन वो कहते हैं कि व्हाटएवर दैट लैक्स सब्सटेंस ऑलवेज चेंजिंग, being such that any part of it always depends on others and so on. So अगर समथिंग चेंज हो रही है तो उसका तो कोई सब्सटेंस उसके नज़दीक एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई बिलीव कि इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपस में सिमिलर मुझे जो समझ आती है वो नहीं है। सही। और रसल जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं उसमें और नागार्जुन में कितनी सिमिलरिटी है? रसल तो शायद उस सब्सटेंस की बात कर ही नहीं रहा। मुझे इसमें बहुत मुश्किल पेश आई। मैंने आपके उस बात के बाद रसल का जो दिया वो डिस्क्रिप्शन का चैप्टर है उसको फिर एक दफ़ा बैठ के पढ़ा कि वो जब वो कहता है दिस इज़ मैन एंड दिस इज़ जॉन्स, और वो क्या कहना चाहता है और कहाँ पे मैं सब्सटेंस को लेके आऊँगा, लेकिन मुझे
बहुत समझ उसमें नहीं आ पाया कि ठीक। रसल जो है वो असल में जिस चीज को नागार्जुन सब्सटेंस कह रहा है, रसल एग्जैक्टली उसी को इस्तेमाल करता है और वो कुछ अलग तरीके से पेश करता है कि अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि डिस्क्रिप्शन में यही बात हो रही है या नहीं, मगर क्योंकि मैंने वो पहले पढ़ा है तो मुझे डिस्क्रिप्शन भी उस तरह लगता है। जैसे कोई बिलीफ है चेयर, उसका जो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट है जिसको हम फैक्ट कहते हैं, एक्चुअली वो सब्सटेंस है असल के, मगर वो फैक्ट जो है वो इस तरह है कि वो लैंग्वेज में नहीं आ सकता, वो सिर्फ एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम चीज़ों को जानते हैं उस पूरी थ्योरी के अंदर। ये क्लियर? दोबारा प्लीज, वो जो रसल कहना चाह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली सब्सटेंस है, जो प्योरली ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन ना हो, सब कुछ खत्म कर दो ना, जो सिर्फ ऑब्जेक्ट रहता है विदाउट डिस्क्रिप्शन, विदाउट इंफॉर्मेशन। क्या? और वो ये बात मटेरियल के बारे में या इमटेरियल दोनों के बारे में कर रहा है? इमटेरियल तो रसल के यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता ना। राइट। रसल के यहाँ इमटेरियल तो सिर्फ ये है कि ख्याल जो है जी वो एक सेमी मटेरियल चीज है, मगर इमटेरियल नहीं है। कंप्लीटली वो इमटेरियल नहीं है। नहीं, क्योंकि वो डिराइव मटेरियल से होता है तो इमटेरियल नहीं मानते ना उसको। ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है मटेरियली जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्सटेंस है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, इसीलिए जो ट्रूथ है वो हमेशा उसकी तरफ जाती है। जी दुरुस्त जी। मगर नागार्जुन एक स्टेप और आगे जाता है। नागार्जुन कहता है कि एक्चुअली जिसकी तरफ हम इशारा करने जा रहे हैं वो भी डिस्क्रिप्शन है, वो सब्सटेंस नहीं है। मतलब हम रिफर ही नहीं कर रहे किसी और चीज को, हम सिर्फ लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन ही को रिफर कर रहे हैं। वो थोड़ा हाँ इस तरह। यहाँ तक क्लियर है? नहीं तो जब नागार्जुन ये कह रहा है तो वो उसका आर्गुमेंट क्या है फिर नागार्जुन का? हाँ मतलब वो चेंजिंग की बात करता है कि सब्सटेंस के अंदर एक एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, इसलिए वो वाला सब्सटेंस जो कि थॉमस के यहाँ है ये वैसा नहीं है, या क्या है उसका आर्गुमेंट? जो सेक्शन हमने नागार्जुन का पढ़ना था वो लिंग्विस्टिक्स के ऊपर है कि लॉजिक में या लैंग्वेज में जिस चीज को हम साइन कहते हैं या जिस चीज की तरफ कोई चीज रेफर कर रहा हो, जैसे कि हम कहें कि ये एक व्हाइट बोर्ड है तो हम व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम हमेशा ये मानते हैं कि जो हम कंसीव कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम सोच रहे हैं। नागार्जुन कहता है कि चूंकि लैंग्वेज स्ट्रक्चर हमें अलाउ करता है इस तरह सोचने को, तो ये लैंग्वेज स्ट्रक्चर है असल में जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं। अब इसकी वजह है, वो वजह ये है कि आप रेफरेंस जितना ले लें वो कभी भी खारिज में नहीं जाती, वो हमेशा एक लैंग्वेज के अंदर रहती है। वो इस बात को आगे लेके जाता है कि जो वर्ड है वो एम्प्टी है, वो सब्सटेंस से खाली है। सब्सटेंस ऑन्टोलॉजिकली और मेटाफिजिकली एग्जिस्ट करता होगा मगर वो लिंग्विस्टिकली नहीं करता। ये बात तो रसल भी कह रहा है। यही बात तो रसल भी कह रहे हैं। जैसे वो एक मिसाल देता है डिस्क्रिप्शन के अंदर कि ब्रूटस लव्स सीजर, आई थिंक डिस्क्रिप्शन में है या किसी और में है, तो उसमें वो कहता है कि ब्रूटस और सीजर तो एग्जिस्ट कर रहे होंगे और उसकी तरफ रेफरेंस जो दिया जा रहा है इस लैंग्वेज प्रोपोजिशन के थ्रू वो शायद दुरुस्त है, लेकिन लव का जो लफ्ज है वो तो एम्प्टी है। जी जी हाँ, यहाँ पे रसल इसके साथ है, मगर रसल अपने पूरे आर्गुमेंट के अंदर जिस चीज को मान रहे हैं वो ये है कि वर्ल्ड जो है वो मटेरियली एक्चुअली एग्जिस्ट करता है और हम उसके बारे में बात करें। जो नागार्जुन है वो कह रहा है कि हम ये नहीं जानते,
जब हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो एक्सटर्नली एग्जिस्ट करते हैं, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है, इसकी भी कोई खास हैसियत नहीं है। जब आप इवन जितना भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दें, वो लैंग्वेज के अंदर ही रह के उसी के उसूल और कवानीन के तहत बनती है। In a sense, he is trying to say that the reality is unknowable. Linguistically, हाँ। Linguistically, yes, linguistically. जी जी। मगर असल इसका थोड़ा सा मुखालिफ है इस मामले में। दुरुस्त। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास कितने 4 रीडिंग्स थे जो कि अगली क्लास के लिए हैं। जी आपने देख ली थी हल्का सा झलक कोई या नाम पढ़े थे? हाँ, इब्ने सीना की देखी है थोड़ी सी स्टार्ट में, जो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्शन और इसके ऊपर है, बाकी अभी नहीं देखी। स्पीशीज, जीनस, एक्सीडेंट, डिफरेंस, सिमिलरिटी, प्रॉपर्टीज। अभी हम सीधा सीधा लॉजिकल टर्म्स की तरफ आते हैं और क्वांटिटी। ठीक है, ये जो रीडिंग है इनमें से सबसे पहले आप इब्ने सीना पढ़ें क्योंकि सबसे आसान है। उसके बाद जो है एंटोन आर्नल्ड है, उसके बाद जॉन बोलिदान है। जॉन बोलिदान थोड़ा डिटेल काम है, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है, एक्सीडेंट, डिस्टेंस, डिफरेंस, सिमिलरिटी, क्वांटिटी। इनको कहते हैं, इब्ने सीना तो इनको कहता है कि दूसरे नाम से या नाम से 5 जो हैं 1 2 3 4 5 जो हैं ये पूरी लॉजिक की बहस की बुनियाद है, जिनके ऊपर हम बात करेंगे, जिनके इर्द गिर्द ये सारी बातें होती रही अभी तक जितनी बातें हुई। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जीनस क्या होता है, इसको जेंस कहते हैं। जेंस या नौ के बारे में आपको इल्म है कोई, क्या होता है उसके क्या? अच्छा, कौशल साहब से तो भूल ही गए। कौन सा आपका सवाल जो हमने आपको इम्तिहान के लिए दिया था? नहीं, मैं मानना चाहूँगा मैं नहीं पढ़ सका इस दफ़ा बिल्कुल भी। अच्छा। तो हमारी जो दूसरी सीटिंग थी तो उसमें मैं मसरूफ रहा उसकी तैयारी में, इसलिए आप अगर तो हम ये समझा भी दें तो मेरे लिए आसान हो जाएगा दोबारा उसको देखना। सर जेंस या जीनस के बारे में आपको पता है क्या होता है? जींस मेरा नो कहते हैं, हमने फारसी में वगैरह थोड़ा पढ़ा था। जींस को जींस कहते हैं और नो को नो कहते हैं। नो को नो कहते हैं, फिर आप दोबारा बता देंगे, क्या साहब नहीं कर सकते। जीनस या जींस के बारे में कोई है या शायद कि जीनस किसे कहते हैं या जींस किसे कहते हैं? जीनस वो प्रॉपर्टी जो जनरलाइजेबल अक्रॉस बीइंग्स, तो एक जो बीइंग होता है, जीनस इज सम प्रॉपर्टी दैट्स कॉमन टू मल्टीपल बीइंग्स। सही है, कॉन्फिडेंट होके बोल दें, इसमें कोई कबाहत नहीं, गलत कहने में। ऐसा आपके ख्याल में जीनस जो है वो एक समझ लें कि इनकी एक रिलेशन होती है दोनों की, जीनस है एक स्पीशीज। कोई शे, ये चीज कुछ भी एक मजमूई चीजों के अंदर जो सिमिलैरिटी उनमें नजर आता है ना, उन सिमिलर क्वालिटीज की समझ लो एक सेट बनता है। उस सेट को हम जीनस कहते हैं या जीनस कहते हैं बहुत जनरल सेंस में। एग्जैक्टली जीनस ये नहीं होता, जब हम देखेंगे एग्जांपल तो मैं वो हो जाएगा। जैसे एनिमल जो है, इब्ने सीना के यहाँ जैसे वो कहता है कि जो शे जिस्म रखती हो, मकसूम हो और रूह रखती हो, वो जो है
हयात है और हैवान। और मोटाइल भी होना जरूरी होता है कि वो चल फिर सकते हैं या कुछ भी हरकत की उसमें कैफियत होती है। अब जहां जहां ये चीज नहीं होगा वहां वहां वो चीज शेर जीनस नहीं होगी। समझ रहे हैं? जहां जिस्म और रूह का वो ताल्लुक नहीं है वहां जानवर नहीं है। अगर हम कहें कि कोई शे जो जिस्म रखती है वो हैवान है या जिस्म और हयात रखती है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कोई भी शे जो जिस्म और हयात रखती हो वो हैवान है। नहीं, दरख्त भी है। इसमें क्या हम ऐड करेंगे जो जीनस बन जाए? एक तो आप मूवेबिलिटी, मगर हरकत आप कहेंगे, हरकत कहेंगे, और फिर आप जुबान कहेंगे। जुबान भी? हाँ, जुबान जुबान को बता, हाँ, और हरकत कहेंगे, जुबान कहेंगे, और सोचने के लिए आप क्या से कहेंगे, कॉन्शियसनेस कहेंगे या शऊर कहेंगे। शऊर के लिए, शऊर से जबान में होते हैं। हाँ, मगर जुबान तो परिंदों की भी है ना, वो शऊर उस जमाने में तो हम इंसान के शऊर के हवाले से नहीं लेंगे। सही। हाँ, तो ऐसा यहाँ पे है कि जीनस एनिमल जो है तो वो है कि जिस्म रखती हो, हयात हो, जबान रखती हो, शऊर हो। नहीं, मेरे हाँ शऊर तो खैर नहीं हो सकता, इसलिए कि शऊर तो वो नहीं रखते। बाकी तकरीबन ठीक है। सही। कोई भी ऐसा जानवर नहीं हो जो बेजुबान हो। You are right. जुबान is not one thing that is common to all, तो वो निकल जाएगी। ठीक है। Because कीड़े मकोड़े भी हैं और but the chance is that we don't know, maybe उनकी हो। सही। बचता ही क्या है, जिस्म है और वो जिस्म जो है हयाती है। हाँ जी। वह वो तो दरख्त भी है। क्या चीज? अगर जिस्म और बॉडी और लाइफ है, क्योंकि आपको ना जो हमारे सीना साहब हैं उनका बॉडी और सोल की कॉम्बिनेशन को जानवर कहते हैं। यहाँ पे हम ये दोनों में से एक सिलेक्ट करें कि अगर जिस्म और हयात जो है वो जीनस है एनिमल का, फिर तो दरख्त भी जिस्म रखता है और हयात है। प्लांट और एनिमल में क्या फर्क है? अनलेस हम ये कहें कि हयात ज़ीरूट को कहा जाता है, जिसमें हम ज़ीरू महज जानवरों को कहें, जिसका मतलब है कि पौधे जो हैं ज़ीरू नहीं होंगे, पौधे हयात नहीं होते। हाँ, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो जीनस का है ये भी तो किसी एक मजहब के ताबे हो गया ना, जो कि सोल को माने। मतलब जो नहीं है वो भी तो किसी मजहब का ताबे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सही है वो क्या है ना। हाँ ठीक है, फिर उस हिसाब से तो ये दूसरी डेफिनेशन ठीक बनती है कि बॉडी और सोल हो तो वो एनिमल कहला सकती है। सही। शायद आपके ख्याल में जी, स्पेसिफिकली वो डेफिनेशन ऑफ एनिमल। जी हाँ। बॉडी एंड सोल मेक सेंस इफ हम असूम करते हैं कि प्लांट्स के फिर या प्लांट्स के सोल्स नहीं होते, they're living things, लेकिन I guess lower या less complex living things। सही। उनके जो वो ना, सॉरी शायद क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं बोला मैं। ऐसा बायोलॉजी में क्या कहते हैं कि एनिमल किंगडम जो है वो किसे कहते हैं?
जी जी सॉरी, मैं वो माइक ऑन करना भूल गया। वो मुझे याद नहीं रहा क्योंकि बहुत पुरानी बात है जब कोई एनिमल किंगडम को हमने देखा था। बट डेफिनेटली उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि कॉमन टू ऑल होती हैं, तो उसी से जीनस हुआ है, वो निकलती है और फिर स्पीशीज और वो सब स्पीशीज निकलती हैं आगे। सही। तो जीनस जो है इन इसी जुमरे में वो शय है जो मजमुआ है अनवा का, स्पीशीज का। वो इस तरह से कि स्पीशी में जो क्वालिटी ऑफ जीनस है वो एसेंशियल होती है या नेसेसरी होती है। कोई भी ग्रुप हो किसी कुछ चीज़ों का, उसमें जो नेसेसरी या एसेंशियल जो क्वालिटीज़ हैं उनके एक जो सेट बनता है उसको जीनस कहते हैं, जो नेसेसरीली उसके हैं। मतलब जिस्म जो है वो हैवान से अलग नहीं हो सकता और रूह जो है वो हैवान से अलग नहीं हो सकती। तो और मामला है कि जब वो जिस्म मर जाता है तो क्या होता है, वो फिर अलग गया से मार के। तो इसको हम जीनस कहते हैं। हर जीनस के मुख्तलिफ स्पीशीज होते हैं और फिर इसी तरह हर जीनस जो है खुद भी स्पीशीज होता है। जैसे एनिमल जो है या एनिमेटेड जो शे है उसमें से एक एनिमल है, बाकी जितने भी जो हयात रखते हैं एनिमल में से एक मैन है, मैन में से एक कौसर साहब है। अब कौसर साहब का जो जीनस है वो मैन है और मैन का जीनस एनिमल है और एनिमल का लिविंग थिंग है। सबसे ऊपर क्या है? अब एनिमेटेड थिंग का लिविंग थिंग जी हयात है जी वजूद। तो जो एनिमल है वो खुद एक वो है स्पीशी भी है और एक जीनस भी है। एनिमल के मुख्तलिफ स्पीशी हैं जिनमें एक है जिसकी खासियत बॉडी है और रैशनैलिटी है। सही है, बॉडी रैशनैलिटी ये मेन है। फिर उन्हीं में से एक जो है जो कि बॉडी और रैशनैलिटी रखते हैं वो कौसर साहब है। तो कौसर साहब पर्टिकुलरली एक स्पीशी है, मगर वो रिड्यूस होके खुद भी मुख्तलिफ स्पीशीज में बढ़ सकते हैं। जैसे कि उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात में वाक़ हैं, वो सारे में जितने भी वो मुख्तलिफ स्पीशीज में बढ़ जाते हैं। अब इनके यहाँ एक है जो लॉ है, वो ये है कि जब भी कोई स्टेटमेंट हो कि हम अगर ये कहें ऑल मैन और कौसर और कौसर्स और एनिमल, ऑल मैन और एनिमल्स, ठीक स्टेटमेंट है। तमाम इंसान जो हैं उनमें एक एसेंशियल क्वालिटी ऑफ कौसरियत है और तमाम कौसर जो हैं वो जानवर हैं। इस लिहाज से तमाम इंसान वो जानवर हैं। अब इसमें दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है और तीसरा ट्रू है, पहला फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है? ये कि उसमें ये मुमकिन है कि कौसर की जो सब स्पीशी हो जो नीचे वाली वो मुख्तलिफ हो और सारे आदमी वो नहीं हो सकते। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एक स्पीशी की तरफ इशारा कर रही है
जी और इट इज गेटिंग जनरलाइज इन सेकंड एंड फर्दर जनरलाइज यानी जीनस की तरफ जा रहा है इन थर्ड स्टेटमेंट. जी सो जो पहला है उसमें ऑल मेन कैन नॉट बी कॉसर बिकॉज कॉसर इज ए स्पेसिफिक स्पीशी. जी जी. और कौसर स्पीशी है इसी ग्रुप का. उसूल ये है कि कभी भी किसी स्टेटमेंट में या किसी सेंटेंस में हम स्पीशी से जीनस डिराइव नहीं कर सकते. ये एक लॉ है कि पहली जो रिडंडेंसी हुई यहाँ से आती है कि क्या स्टेटमेंट में स्पीशी पहले आ रहा है या जीनस पहले. इसको हम कहते हैं कि स्पीशी जो है वो जीनस जो है स्पीशी का प्रेडिकेमेंट है. स्पीशी प्रेडिकेबल है नहीं, जीनस प्रेडिकेबल है स्पीशी के ऊपर. समझ रहे? प्रेडिकेबल किसे क्या है? डेरिवेशन है. जीनस जो है उससे स्पीशी निकलती है. तो हम स्पीशी से जीनस नहीं निकाल सकते. कि मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि कौसर साहब की कोई भी खासियत इस्तेमाल करें, हम ये नहीं कह सकते कि कौसर साहब जो हैं तमाम रैशनल बीइंग्स के वो हैं. एक मिसाल है, तमाम रैशनल बीइंग्स हैं वो कहें या कौसर साहब कहें तो ऐसा नहीं, क्योंकि वो खुद उस चीज़ के वो स्पीशी हैं. और यहाँ पे जीनस जो है मैन है और स्पीशी कौसर साहब. यहाँ पे ठीक है, एनिमल जो है वो किसी हद तक जीनस है कौसर साहब. और यहाँ पे भी ठीक है, जो मैन है वो स्पीशी है एनिमल का. तो यहाँ पे इशारा यूं हो रहा है कि मैन फ्रॉम कौसर और कौसर फ्रॉम एनिमल, मैन फ्रॉम एनिमल. इसके लिए हम काम करेंगे जिसका मिडिल टर्म के यहाँ मिडिल टर्म ये है और हाँ ये बात बरन नहीं है, ये गलत है. सही. यहाँ पे क्लियर है कि जीनस और स्पीशी का ताल्लुक क्या है. जी क्लियर है, पक्की बात है. ठीक है, हम आगे बस ठीक. अगला हमारा है नेसेसरी और एक्सीडेंटल. Sorry, essence accidental या necessary or accidental? दोनों एक ही हैं. आजकल उसे नेसेसरी कहते हैं बेचारे, वरना एसेंस ही है. हाँ, क्योंकि अब तो काफी लोग हैं जो कि मुर्तिद हो गए हैं, तो वो लफ्ज भी इस्तेमाल करना गवारा नहीं. एसेंस जब सीना आप पढ़ेंगे उसमें एसेंशियल ही लिखा होगा. एसेंस एंड एक्सीडेंटल, एसेंशियल और एक्सीडेंटल. अब एक और चीज़ है वो दरमियान में आती है जिसको मॉड्यूलर कहते हैं, मगर वो हम डिस्कस नहीं करेंगे कि वो थोड़ा सा अलग है. एसेंशियल वो क्वालिटीज़ होती हैं जो ना हो तो वो शे नहीं होगी. उस शे की होना ही डिपेंडेंट है उस क्वालिटी पे. जैसे हम कहें कि जीनस जो है एनिमल का, वो अगर बॉडी और सोल है तो कौसर साहब में ये दोनों होने चाहिए. बॉडी भी होनी चाहिए और सोल भी होनी चाहिए. इसके अंदर वो जो क्वालिटी है वो एसेंशियल है. ठीक. मतलब जीनस जो है वो एनिमल है ना. अब कौसर साहब जो है वो एक समझने के थर्ड डिग्री स्पीशीज है. जिनमें मैन फिर मैन से जो है एक पर्टिकुलर शख्स आता है. उनका बॉडी और सोल होना चाहिए रखना, कि जिस्म भी हो और जीरो भी हो, ये दोनों उसकी एसेंशियल क्वालिटी है. ऐसा अगर ना हो तो समझ लो फिर कुछ नहीं है, फिर वो जानवर ही नहीं, इंसान भी नहीं, कुछ भी नहीं. यहाँ पे जी हयात होता है और जान हैवान है. अगर उसमें रैशनैलिटी ना हो तो वो इंसान नहीं रहता, हैवान हो जाता है. पर इंसान होने की उसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं होती. तो इंसान होने के लिए रैशनल
बॉडी एंड सोल होना जरूरी होता है, वो उसकी जीनस को जस्टिफाई करते हैं। अगर ये निकल जाए किसी में ये ना हो तो इसका मतलब है, इसके दो मतलब हैं। या तो ये है कि डेफिनेशन कमजोर है, फिर डेफिनेशन की तरफ जाया जाएगा, देखा जाएगा कि वो एक्चुअली कमजोर है नहीं। डेफिनेशन वो होती है कि जो किसी चीज के तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सके बगैर उसको सिनोनिमाइज करने के। अगर डेफिनेशन ठीक है तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो है उस जीनस का हिस्सा नहीं है, समझ रहे हैं, जो कि एसेंशियल प्रॉपर्टी ना हो। दूसरे जो होते हैं वो एक्सीडेंटल होते हैं। एक्सीडेंटल कहते हैं कि कोइंसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को, जो जिनका होना ना होना उस ऑब्जेक्ट के होने पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो ऑब्जेक्ट उसकी वजह से नहीं है। कि इंसान का हंसना वो एक एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है, उसका एक पर्टिकुलर जबान बोलना एक एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है, इवन उसका जबान बोलना भी एक एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है, क्योंकि कुछ लोग जरूरी नहीं है बोल सके, कुछ लोग बोलते भी नहीं, गूंगे जो होते हैं मगर इंसान होते हैं। अब एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज वो होती हैं क्या कहते हैं, जो बदलती रहती है, जो कॉन्स्टेंटली नहीं है, जो शुरू से हमारे साथ नहीं है, जो बाद में जाके हमारे साथ नहीं है। जो पर्टिकुलर होता है उसके तमाम क्वालिटीज जो हैं उसको पर्टिकुलर रखने के तमाम एक्सीडेंटल होते हैं, माँ से वाइस के कि वो जिस चीज का पर्टिकुलर, समझ रहे हैं। एक यूनिवर्सल होता है जो कुल है, एक पर्टिकुलर उसका जुज़ है। बाय द वे यूनिवर्सल और जीनस, स्पीशी और पर्टिकुलर में फर्क है। अच्छा ठीक जी हाँ, स्पीशी और पर्टिकुलर, यूनिवर्सल जो है किसी भी ग्रुप ऑफ सेट को कह सकते हैं, जीनस इस तरह नहीं होता। जीनस नेसेसरीली एक पर्टिकुलर ग्रुप रखता है। जैसे एक यूनिवर्सल है कि कोई सफेद चीज है, उसमें सफेद होना जो है वो एसेंशियल है। कोई चीज उसका रंग सफेद है वो एक्सीडेंटल है, सफेद होना वहाँ। यहाँ पे दोनों जो है एक यूनिवर्सल शेयर कर रहे हैं, मगर ये यूनिवर्सल एक जीनस नहीं है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस जीनस की स्पीशी नहीं है, वो पर्टिकुलर है वाइटनेस की। वाइटनेस एक यूनिवर्सल है। और यहाँ पे दूसरे पहले वाले में जो है ही सफेद ऑब्जेक्ट, उसमें वो एसेंशियल क्वालिटी है सफेद होना, क्योंकि उसके सफेदी कोई निकाल दिया जाए तो उसकी पूरी अहमियत वो खत्म ही हो जाती। दूसरी शे जो है तो महज रंग रखती है सफेद, क्योंकि अगर वो सफेद ना होता तो कुछ और भी हो सकता था। तो वो जो है उसकी क्वालिटी एक्सीडेंटल होती है, समझ रहे। इसके अलावा जो तीसरी जो चीज है, चौथी है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी। जितने एक्सीडेंटल्स हैं वो प्रॉपर्टी है। किसी ऑब्जेक्ट में जो एक्सीडेंटल क्वालिटी है वही प्रॉपर्टी है। डिफरेंस और सिमिलरिटी का अंदाजा है। अब ये तमाम चीजें जो हैं इनकी जरूरत क्या है, 10 मिनट में ये बहस डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे देखते हैं। जब हम कोई डेफिनेशन देते हैं, हाँ, उसमें पहले ये देखा जाता है कि वो एक जीनस को अगर डिफाइन कर, मिसाल के तौर पर एक जीनस को डिफाइन कर, तो उस जीनस के अंदर जितने स्पीशीज हैं, 1 2 3 जितने हैं सारे ना, इनके अंदर एसेंशियल क्वालिटीज क्या क्या हैं और एक्सीडेंटल क्या हैं। जिनमें से ये जो हैं प्रॉपर्टीज हैं इसके। एक दूसरा, इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने का तरीका ये है कि इसमें सिमिलैरिटी क्या है
और डिफरेंस क्या है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं और ये उस डेफिनेशन में ये पांचों चीजें हों तो वो एक डेफिनेशन कंसीडर की जाती है, एक डेफिनेशन सही कंसीडर की जाती है। अब हमने एक डेफिनेशन उसकी ली है, जीरो जिस्म जो है वो हैवान है। यहाँ पे ये जीनस है, इसके स्पीशी कौन कौन से होंगे? कोई भी स्पीशी कुत्ता के लोग हैं, इंसान है, हॉर्स है, गधा है, भेड़ बकरी है। इनमें सिमिलरिटी क्या क्या है सब में? जिसम मजबूत मोहर, ये सिमिलर है ना, ये वाला। तो और चूंकि सिमिलर है तो ये एक यूनिवर्सल भी है। इस यूनिवर्सल को जिसकी सिमिलरिटी कॉन्स्टेंटली उसके पर्टिकुलर्स में एग्जिस्ट करती हैं, स्पीशी कहते हैं, जीनस कहते हैं, जिसके लिए ना होना जो एसेंशियली उसके अंदर है। अब एक कुत्ता है और एक गधा है, उन दोनों में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी क्या होती है? तो एक हल्का है गधों का जो महल गधे हैं, और कुछ जानवर हैं जो गधों की तरह के हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, कचर हैं, इस तरह के जो सारा सेट है, ये जो है सब स्पीशी है। उसकी सब स्पीशी मतलब इसका जो स्पीशी है ना, हैवान का, जानवर का जो स्पीशी है, वो गधे जो हैं उनके एक सब स्पीशी वो जिसमें गधे नुमा सारे जानवर हैं, गधे घोड़े वगैरह ज़ेब्रा जितने भी, उनमें फिर छोटा सिमिलरिटी वो अलग अलग है। चौपाए जो होते हैं वो फिर एक ग्रुप है, दो पाए जो होते हैं वो एक ग्रुप है, इस तरह के। अब इसमें अगर हम ये कहें कि इंसान जो है वो बाइपेड उसको कहते हैं ना, दो पाया है, तो इसका मतलब है कि हर दो पाया जो है इंसान होता है, जिसके दो टांगे होंगी इंसान है। क्यों करके है सर? ये एक नेसेसरी चीज है जो कि इन तीन टेक्स्ट में तफसीलन इस पर बात की गई है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? मेरे ख्याल से तो आसान था। पैसा जी, कोई मामला सवाल वगैरह है इस पर? यहाँ समझ आ गई कि क्या बात हो रही है? एक्सीडेंट को अगर आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकें थोड़ा सा। सही है। एक्सीडेंट जो है वो जिसको हम कहते हैं कदीम और अर्ज, शायद ज़्यादा मुश्किल होती है। एक्सीडेंट एंड एसेंशियल, ये दोनों आपस में मुखालिफ हैं, तो इन रिलेशन के अंदर हम इसको समझ सकते हैं कि ये है क्या। अब एक्सीडेंट वो है जो किसी शे के वजूद के साथ, या यूं समझ लो किसी शे के साथ इनिशियली उसके साथ होता नहीं है। जैसे कि इंसान में चलना जो है वो एक्सीडेंट है, क्योंकि वो हर कांस्टेंट मूवमेंट में चलता नहीं है, और ना ही उसमें नेचुरली वो कैपेबिलिटी होती है कि वो डायरेक्टली उठ के चल सके। या देख पाना, समझना,
या जबान, वो तमाम चीजें जो कि बदल सकती हैं, वो एक्सीडेंट्स हैं। वो यानी तमाम कि यानी जो मैं समझा वो ये कि जो जीनस की जो असेंशियल्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं उससे हट के जितनी चीज़ें एक के अंदर पाई जा रही हैं वो एक्सीडेंट वो कहलाएंगी। accidents हैं। जी हाँ, राइट, ठीक है, जो जीनस की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते मगर स्पीशी में होता है, वो एक्सीडेंट्स हैं। सही, ठीक। अब जैसे कि रेशनैलिटी है, वो एनिमल के निस्बत एक एक्सीडेंट है। इंसान जो एक रेशनल एनिमल है, तो वो इंसान में एक एसेंशियल क्वालिटी है, मगर हैवान में एक एक्सीडेंटल क्वालिटी है। ये दोबारा जरा तो बोलेंगे। देखिए ना, यहाँ पे जीनस तो है, एनिमल है ना, और उसका सब जो है वो मैन है, बाइपेड्स है, उसका सब जो है वो सोशल एनिमल है, उसका सब जो है वो रेशनल बाइपेड सोशल एनिमल है। उसके जो नीचे है वो फर्द है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिटीज है ना, इसमें जो जो इस चीज को जीनस बना रहे हैं, वो इसके लिए नेसेसरी है। इसके जो है वो इसके लिए नेसेसरी है, इस वाले के इसके लिए नेसेसरी है, और इस वाले के अपने से नीचे के लिए। अब जो क्वालिटी इसके अंदर है वो नेसेसरीली तमाम जानवरों में नहीं है। तो जीनस में रेशनैलिटी, बाइपेड और सोशल होना जो है एनिमल के अंदर एक्सीडेंटल है, क्योंकि कुछ में है कुछ में नहीं है। तमाम अगर इस तरह होते तो तमाम जानवर जो थे वो इंसान ही होते ना। तो चूंकि वो तमाम में नहीं है, तो वो एनिमल की डेफिनेशन में ये क्वालिटी जो है एसेंशियल नहीं है, एक्सीडेंटल क्वालिटी। अब क्लियर? हाँ, जस्ट टू क्लैरिफाई, लेकिन तो अगर हम कहें कि अगर एनिमल है और रैशनल है, फिर जो भी वो स्पीसीज के लिए या जो क्लासिफिकेशन विद इन द जीनस जिसकी एसेंस है, जिसकी एसेंशियल डेफिनेशन में रैशनैलिटी है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो अस्यूम नहीं बंदा करता कि वो फिर ह्यूमन ही होगा। अगर हम कहें कि एनिमल है और रैशनल है, फिर वो फिर ह्यूमन ही हो गया ना। जी हाँ, जो रैशनल है और सोशल एनिमल जो भी है ना इस तरह का, वो ह्यूमन ही होगा, क्योंकि वो जो डेफिनेशन है वो ह्यूमन के लिए एसेंशियल है, सही, वो एनिमल के लिए नहीं है। तो एनिमल में मतलब कहते हैं कि वो जी हाँ, खत्म करें। क्योंकि एनिमल में वो प्रॉपर्टी जो है वो एक्सीडेंटल है, वो एसेंशियल नहीं है। ठीक है। मतलब जो सबसे ब्रॉड कैटेगरी है उसमें जो एक सब या उसमें जो एक सब क्लासिफिकेशन का एसेंशियल है, वो लार्जर कैटेगरी में या वो लार्जर जीनस में वो एक्सीडेंटल हो गया। जी हाँ, इसी का। तो एक्सीडेंट जो है वो जरूरी नहीं है हमेशा एक्सीडेंटल हो, और जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ना हो। एक्सीडेंट एक कंटेंजेंट कंडीशन में होता है कि वो किसी का एसेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है किसी चीज की, और ऐसा मुमकिन है कि एक्सीडेंट हमेशा ही एक क्या कहते हैं एसेंशियल हो, क्योंकि मिसाल के तौर पर बोलना एक खास मौके में और एक खास तरीके से अगर इस कंडीशन किया जाए इस जगह पे कि यूं यूं होगा तो ये होगा, अगर ये ट्रू है तो वहां पे बोलना जो है एसेंशियल होगा। जैसे कि समझ लें, अगर बोलने की डेफिनेशन अगर आवाज है, उसकी सीक्वेंशियल मूवमेंट है और उसके पीछे मीनिंग जब भी हो तो उसको बोलना कहा जाएगा। जी। तो वहां पे बोलना जो है वो एसेंशियल है, वो जो क्वालिटी है। अगर ये नहीं है, अगर इंसान में देखा जाए तो इंसान में एक्सीडेंटल नहीं, उस मूवमेंट में एसेंशियल नहीं है, एक्सीडेंटल उस मूवमेंट में वो जो है एसेंशियल है। एक ब्रेक चाहिए, चलते रहें? ब्रेक ले लें। चलो।
इस दौरान अगर कोई सवाल है इस हवाले से तो हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं तब तक। बाकी ये है कि ये जो कैटेगरीज हैं इनको कहते हैं ये 5 बुनियादें हैं जो एक आर्गुमेंट या स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी है समझना के जब आप डिफाइन कर रहे हो किसी चीज़ को तो आपको ये पता हो कि इनमें जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो क्या प्रेडिकेबल है भी कि नहीं। प्रेडिकेबल का मतलब ये है कि एक जीनस है और एक स्पीशी है। अब इन दोनों में से कौन किसका प्रेडिकेबल है? प्रेडिकेबल मतलब ये उसके अंदर हो ना। राइट मतलब स्पीशी का प्रेडिकेट जो है वो जीनस हो सकता है। जी उल्टा इसका नहीं हो सकता। राइट जीनस प्रेडिकेट स्पीशीज। जी हाँ, जिसको दूसरे मानों में लफ्ज ये है कि अगर आप जीनस और स्पीशी के लफ्ज को निकाल भी दें तो वो क्वालिटीज जो जनरली एसेंशियल हैं या नेसेसरी हैं कि वो अगर ना हो तो हम इस चीज को जान नहीं सकते, और दूसरे वो हैं जो इन नेसेसिटी के पर्टिकुलर्स हैं। एग्जांपल्स जो भी हैं, अगर हम कहें कि ये पर्टिकुलर जो है ये जो है इस पे डिपेंडेंट है या इसके तमाम अरकात जो है इसकी वजह से हैं या इसको इसकी वजह से यूं कह दें कि ये इसका पार्ट है बजाय इसके कि ये इसका पार्ट है, तो समझ लो कि वो स्टेटमेंट जो है वो पूरी लिंक या रिलेशन गलत है। ठीक है। तो वो किसी भी जगह पे हो सकता है। अगर हम ये कहें कि नेचुरल नंबर जो हैं वो मिसाल के तौर पे लाइबनिज का एक थ्योरम है जो बड़ा बाद में मशहूर होता है जिससे इन्फिनिटी का आइडिया निकलता है कि नेचुरल नंबर ये है ना 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाता है। जी अगर हम इवन नंबर इसके बराबर लिखें 2 4 6 8 10 12 वगैरह, अगर हम इसी दो में से एक काटते जाएं 1 3 5 7 9 11 ये होना तो ये चाहिए कि नेचुरल नंबर जो है वो इवन और ऑड का एक के इक्वल, दोनों को जमा करें तो उसके इक्वल हो। मगर जो एक्चुअल है वो ये है कि जितने नेचुरल नंबर है उतने ही इवन नंबर है उतने ही ऑड नंबर है। ठीक है। अब कंसीडर ये किया जाता था कि ये जीनस है और ये 2 स्पीशी हैं इसके, मगर अब ये है कि ना ये जीनस है ना ये जीनस है, इनमें से कोई भी जीनस नहीं है एक दूसरे का, जिसमें से मैं कह रहा हूँ अगर आप कुछ ऐड करना चाहें या कुछ पूछना चाहें। नहीं, मुझे ये थोड़ा सा आसान लग रहा है इसलिए कि जीनस, स्पीशीज, फैमिली, फाइलोजेनेटिक्स और टैक्सोनॉमी ये काफी आसान रहा है इस हिसाब से कि जीनस और एक्सीडेंट, तो वो एक्सीडेंट नहीं समझ आ रहा था वो मुझे आ गया। हाउ इट इज क्लियर। शायद क्लियर हो गया। हाँ, मतलब जो आप अभी जो बात कर रहे थे वो लाइबनिज की यही था कि वी वुड एक्सपेक्ट कि अगर सेट है नेचुरल नंबर्स का, आपने इवन नंबर्स लिए और ऑड नंबर्स लिए, वी वुड एक्सपेक्ट कि दे वुड बी हाफ द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन हालांकि अगर हम सारे ऑड या इवन नंबर्स लें वो इन्फिनिटी ही है जितने कि सारे नेचुरल नंबर्स का सेट है। जी which is mind blowing, yet it makes sense. तो वहां पे जब उस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, जब लाइबनिज पूरी बात कर रहा होता है वो असल में ये बता रहा होता है कि किसको जीनस माना जाए और किसको नहीं माना जाए। सही। जिसमें हमारा अगला टॉपिक है, इसको हम कहते हैं रिलेशन। ये जदीद मंतिक में इतना बड़ा इशू है कि आजकल एक लॉजिक का स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव लॉजिक।
ये रिलेशनल होगा। रिलेशन कोई भी ऐसी चीज जिसका रिलेशन या रिलेट हो किसी चीज से और उसमें सब कुछ, जिसके साथ हम कहते हैं कि x of something, यहाँ पे जो भी आएगा ना और यहाँ पे जो भी आएगा, ये ताल्लुक रिलेशन का ताल्लुक है। अगर हम कहें कि बोथ ऑफ जो है ना वो है टू ऑफ, हम कहें कि ये ब्लैक है, उसके साथ वो रंग का जो ताल्लुक है ना वो जो है उसका एक रिलेशन है। रिलेशन क्या क्या होते हैं वैसे? मुझे कोई लफ्ज मिले था मुझे एक्सप्लेन कर सकूँ वैसे? जैसे दरख्तों के साथ फल, दरख्तों का फल, हाँ, और गाड़ी के साथ लाइट, और आदमी के साथ उसके बच्चे। नहीं, रिलेशन मतलब ये है कि कुछ भी, कोई भी प्रॉपर्टी हो उससे लिंक हो, वो उसको रिलेशन कहते। शायद जी, रिलेशनल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? relational properties that describe properties that compare two objects in some capacity. Whether वो तो फिर कोई भी property position या description या कोई भी चीज you can prepare या as long as you can relate. मतलब कि कभी-कभी वो फिर you can define an object by relating it to another object as well. So relation is a link between the two things जो कि उनकी किसी आपस की एसेंशियल चीज को शो करती हो, जैसे गाड़ी और उसके पहिए, या घर और उसका रंग। और तो इसी तरह रिलेशन जो है वो उन दोनों का आपस का ताल्लुक है मेरे नजदीक। 10 होते हैं टोटल, एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल एक्सीडेंटली। ये 10 वो चीजें हैं जो कि अगर दो चीजों में ये 10 एक हों तो दोनों एक ही चीज होती। रिलेशन और आइडेंटिटी जो है उसमें जब हम निकालने की करते हैं, किसी भी चीज के प्रॉपर्टी दो शेयर कर रहे हों, या दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हों, या उसकी सिमिलरिटी होती है, डिफरेंस होता है, या उसके जीनस और स्पीशी का जो ताल्लुक है, या यूनिवर्सल पार्टिकुलर का है, या क्वालिटीज एंड क्वांटिटी का है, या एसेंशियल होगा या एक्सीडेंटल होगा, ये तमाम चीजें जो हैं वो रिलेशन के ऊपर हैं। अब ये है कि कौन सी चीज किस तरह रिलेवेंट है। इंसान का जानवर होना जो है वो एक रिलेशन है, जीनस स्पीशी वाले रिलेशन है, वो एक इंसान के अंदर एक एसेंशियल रिलेशन, क्यों रिलेटेड है लेकिन एसेंशियली रिलेटेड है। इसी तरह कुछ रिलेशन जो है वो क्वालिटेटिव है, कुछ क्वांटिटेटिव है, बाकी सारी क्वालिटेटिव है, मां सिवाय कुछ चीजें की। क्वांटिटी जो है या क्वालिटी, जो चीज एग्जैक्टली डिस्क्रीट न्यूमेरिकल हो वो क्वांटिटी है। डिस्क्रीटली न्यूमेरिकल, वो एक रिलेशन ना हो, वो न्यूमेरिसिटी, वो क्वांटिटी है। जैसे 2 ऑफ जो है ना ये क्वांटिटी नहीं है, या सेकंड जो है ये क्वांटिटी नहीं है, रेफरेंशियल है, रिलेशनल है।
या सेकंड और समथिंग। सेकंड जो है वो किसी चीज़ की क्वालिटी और उसके उस चीज़ को रेफर कर रहा है जिसके तहत है। क्वांटिटी वो है जो अपनी डिस्क्रीट होने में रेफरेंशियल ना हो, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट ना हो या किसी और क्वालिटी पे डिपेंडेंट, वो क्वांटिटी है। जैसे 2 जो है क्वांटिटी है, या 3 जो है या 4 नंबर जो है वो क्वांटिटी है। अब किलो जो है ये दरमियानी चीज है, ना इधर है ना उधर है। किलो एक मैट्रिक सिस्टम के अंदर रिलेशनल है, मगर अपनी वैल्यू के हिसाब से वो जो है क्वांटिटी है। तो जो रिलेशनल क्वांटिटी है वो क्वालिटी होती है, वो क्वांटिटी नहीं होती। आज का सबक इतना था। कोई अगर सवाल या समस्या हो तो किया जा सकता है। So आज का I think pretty straightforward था। तो हमने कवर किया था आज those are predicables हैं। So genus or species, accident or essentials, difference or similarity। हमने वो properties और the quantity quality का cover कर लिया। Properties का exactly क्या था? Definition? प्रॉपर्टीज जो जितने एक्सीडेंटल जितने प्रॉपर्टी accidental property। जी मतलब प्रॉपर्टी एसेंशियल नहीं हो सकती, या सीना के मुताबिक एसेंशियल प्रॉपर्टी कोई चीज नहीं होती। अच्छा तो समझ मैं रहे अच्छा so property is attribute which is not part of its ठीक है okay तो property is an accidental basically। जी जी, जो किसी शहर में एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब खासियत जो एक्सीडेंटल होती हैं, वरना जो एसेंशियल होती हैं वो तो उसकी एसेंस होती है, वही जात है, वो ज्यादा नहीं होती वैसे, इसीलिए उसको डिस्टिंक्ट इसी तरह करते हैं। तो एसेंशियल तो एक ही होती है जो कॉन्स्टेंटली कॉमन होता है, बाकी जितने हैं वही प्रॉपर्टीज हैं, और उसको डिस्टिंक्ट करने के लिए इनको प्रॉपर्टीज कहते हैं, उसको एसेंस कहते हैं। 3 सेंटेंसेस बनाने जिनमें से आपने डिफाइन करना है कि बस ये दिखाना है कि रिलेशन किस तरह का है, जीनस और स्पीशी का क्या ताल्लुक है। 3 जुमले बनाने जिनमें आपने ये दिखाना है कि जिस चीज़ का भी जिक्र किया जा रहा हो उसमें रिलेशन दिखाना है कि वो रिलेशन है क्या, कि वो किस तरह की रिलेशनशिप, और ये दिखाना है कि वो जीनस है या स्पीशी। अगर जीनस है, कोई भी जजमेंट होना जरूरी है ताकि वो चीज़ें नजर आ जाए। समझ आ रही है वाला? शायद कोई ध्यान में आया। Lion is a big cat। Lion is a big cat। सही। इसमें रिलेशन क्या है? Relation is के lion is part of this genus of the big cat family जिसमें tiger और panther और दूसरे big cats आते हैं। सही। बिग कैट बराबर है लायन के। यहाँ पे बिगनेस एम्बिगुअस है, ये क्या है? Big ambiguous, big is accidental? नहीं, no, big is essential। बिग एसेंशियल है।
I think so. वरना फिर वो big cat family में नहीं, it's not actually essential. No. बिग इसमें प्रॉपर्टी है, बिग एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है, एक्सीडेंटल है, प्रॉपर्टी है ये। तो ये लाइन की डेफिनेशन नहीं है, तो ये तो वैसे ही कमजोर हो जाता है। जो रिलेशन है कि हम लाइन को बता रहे हैं कि लाइन जो है ये है, इसका मतलब एक लाइन को हम डिफाइन करेंगे कि वो जो है बिग कैट है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी कैट वाली फैमिली में ये प्रॉपर्टी ना रखती हो। अगर हम कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंटल है, फिर तो हम लाइन के मुताबिक कुछ भी नहीं कह रहे। लाइन इज अ कैट, लेपर्ड इज अ कैट, सारे इक्वल। हाँ, इसमें जीनस और स्पीशीज का डिस्टिंक्शन है। ये स्पीशी है और कैटनेस जो है वो जीनस है। कैट होना, अगर कैट क्या कहते हैं इसको, कैनियंस कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, तो फैज सर आपका, फिर हम वापस प्रोसेस आपके पास जाएंगे, देखते हैं आपका दूसरा जुमला। जो मेरा पहला सेंटेंस है वो ये है कि 10 eggs laid by the hen और laid by hen। ये 10 eggs जो है वो क्वांटिटी है रिलेशंस की। और दूसरा सेंटेंस है hen has body and soul, एंड तीसरा है कि all hens are animal। hen, ठीक है ना, बॉडी एंड सोल। तो तीसरा फिर से जो ऑल हैंड्स आर एनिमल। नहीं, फिर इसको यूं करते हैं, ऑल बॉडी एंड सोल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, यस। फिर हम कहते हैं कि ऑल हैंड्स आर एनिमल्स। मगर यहाँ पे एक मसला अब आएगा, वो ये है 10 eggs are animals। जी। हाँ। अब ये है, इससे ये साबित, ये हमने कह दिया ना। फिर हमने कहा कि hen की डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि वो बॉडी और सोल रखते हैं। फिर हम कहते हैं जो बॉडी और सोल रखते हैं वो जानवर। फिर हम कहते हैं जो hen है, हम यहाँ से कह रहे हैं hen जो है वो जानवर है। मगर अब हम इसको आते हैं नीचे लेके आते हैं, जो ये है, चूंकि ये hen है, ये वाले लेड बाय hen। सही है, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ सही है, सही है, सही है। ये सेंटेंस इसके साथ लिंक नहीं है, ये काफी है। 10 eggs laid by hen, फिर हम hen की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बाकी दलील में ये कहाँ गया, ये हवा हो गया। खैर सही ट्राई। कौशल साहब आपका दूसरा जुमला। दूसरा जुमला जी, जजमेंट हो कोई मतलब। हाँ, जानो आम के दरख्त पर 10 आम लगे। इस दरख्त पर 10 आम लगे। दरख्त पे 10 आम लगे। हाँ। ये तो वाकया है। जजमेंट नहीं है, जजमेंट नहीं है, मगर ये वाकया है, ये जस्टिफिकेशन वाकई की है कि एग्जाम पे 10 लगे हैं। इसमें ये हम कह सकते हैं, मतलब अगर हम जबरदस्ती से बनाएं, जजमेंट जो है वो क्या हो सकती है, जिसमें एक फर्द शामिल, फर्द शामिल, जो मुतकल्लिम है ना, उसका कलाम जो है उस तरह हो कि वो जजमेंट को क्या कह सकते हैं, जो स्टेटमेंट है पूरा का पूरा ना, वो ये है कि
दरख्त पे 10 आम लगे हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे जो दरख्त का इस्तेमाल है ये जनरलाइज्ड है, ये जीनस नहीं है। तो दरख्त के मामले में जीनस क्या होगा फिर? दरख्त के मामले में जीनस कैसे होगा? नहीं, जनरलाइज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आम जो है वो आम के दरख्त से ही निकलेंगे, ठीक है, तो हम इसको इस्तिआरे के तौर पे दरख्त कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल कि हालांकि ये जुमला ठीक नहीं है, ठीक, दरख्त से आम लगे जी बिल्कुल ऐसा। सफेद में आम नहीं लगते जी बजा, तो ऐसे लगाने वाले लगा ही देते हैं। अगर अब यहाँ पे जो ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ये एज ए जनरलाइज्ड लफ्ज है जो कि आम के दरख्त के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे अगर ये जीनस होता, जीनस को इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि दरख्त पे ये आम दरख्त वाकई में, मगर ये जो है ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जीनस जो है ये स्पीशीज पे, स्पीशीज जो जीनस पे हावी है। अच्छा ठीक है। फिर शायद आपकी तरफ। जी सर। शमाई में से आपकी तरफ है कोई जुमला? Stay on big cats. All tigers have stripes. All tigers have stripes. और सबसे पहले इसकी करते हैं क्या? फयाज साहब, आपको इनके जेनेटिक्स का पता है? सॉरी, जो टाइगर हैं वो क्या जेनेटिकली स्ट्राइप्स रखते हैं? स्ट्राइप्स? जी जी। आई एम नॉट श्योर। बायोलॉजिकल साइंसेस में जो हम कंसिडर करते हैं ना, जब हम, क्योंकि उसमें फैमिली ऊपर होती है, फिर जीनस और स्पीशीज आती हैं, तो उसमें फाइलोजेनेटिक्स का एक नया वर्ड ऐड हुआ है कुछ अरसे से ना, कि जब हम किसी को क्लासिफाई करते हैं तो उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के अंदर एक फाइलोजेनेटिक्स का एक, तो फाइलो पहले नहीं और जेनेटिक्स पहले नहीं होता था। पहले हम सिर्फ फिनोटाइप यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद के ऊपर तय कर दिया करते थे कि दिस पर्टिकुलर इज, क्योंकि वहाँ पे है किंगडम है, डिवीजन है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है, दिस इज द ऑर्डर। तो आई एम नॉट श्योर कि टाइगर्स की जेनेटिकली स्ट्राइप्स होती है नहीं। मैं जेनेटिकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अगर ये इसकी एसेंशियल प्रॉपर्टी है ना, हमारे यहाँ जो बची कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टी वो जेनेटिक प्रॉपर्टी है। तो अगर ये एसेंशियल है तो टाइगर वो तमाम है जो स्ट्राइप्स रखते हैं। सही। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जब तक हमें बगैर स्ट्राइप वाला टाइगर नहीं मिलता तब तक ये जुमला ठीक है। मेरे ख्याल में तो ठीक है, मैं तो स्ट्राइप्स के बगैर टाइगर देखा। ठीक है, ठीक। फैज साहब, आपके समाधान आपके सामने। मेरे घर का एक गेट है, तमाम गेट लोहे के होते हैं। तमाम गेट लोहे के। तो इसके मुताबिक अगर कोई गेट लोहे का नहीं होगा तो फिर गेट नहीं होगा। जी हाँ, इसमें गेटियत का तस्वीर रख दीजिए। अब यहाँ पे याद रहे जब आप ये कह रहे हैं ना, मेरे घर गेट लोहे का है, यहाँ पे लोहा जो है वो रिलेशन है, गेट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, घर भी जो है रिलेशन है, इवन मेरे भी एक रिलेशन है। यहाँ पे इस जुमले के पूरे के अंदर इंटेंशन को नहीं देखा जाना कि आप इंटेंट क्या कर रहे हैं जुमले में। बात सिर्फ ये हो रही है कि किस जुमले से क्या निकल सकता है, क्या जुमला क्या इन्फर कर सकता है, इन्फ्लुएंस क्या हो सकती है जुमले की।
आप अगर इस जुमले के साथ ये कहें कि तमाम गेट लोहे के होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर के गेट की वजह से तमाम गेटों को लोहा कह रहे हैं, समझ रहे हैं? तो हम इसको इस जुमले को ऊपर लेके आते हैं, जो कि आपका गेट जो है घर का एक पर्टिकुलर है और ये जनरल है, तो यहाँ आप इसको यूं करते हैं, तमाम गेट लोहे के हैं मेरे घर का एक गेट है। जी, मेरे घर का एक गेट है, तो इसलिए, या जो भी इन्फर से कर रहे हैं, ये है कि लोहे इसलिए वो का गेट, इसलिए वो गेट है, या ये जो है ट्रू है और ये ट्रू है, लेकिन ये अब देख रहे हैं कि ये तीसरा दफा है जो ये स्टेटमेंट है ना, आर्गुमेंट जो है एक ही फॉर्म है इसकी, जिसमें हम इसको स्पेशी के बजाय इसकी एसेंशियल प्रॉपर्टी कह रहे हैं। ये अलग इसकी एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है, गेट का लोहे का होना। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तो आपका कल के लिए कोई रीडिंग नहीं है, कल के लिए आपकी छुट्टी है, कल सिर्फ आपने गौर से सुनना है। मगर उसके अलावा जो ये 3 टेक्स्ट हैं, इनमें से कौशल साहब पहले आपसे करते हैं, और ये शर्त इस तरह का शर्त है कि आप अगर ना पढ़ के हैं तो आप ना। 3 टेक्स्ट हैं, आपने उन तीनों के अंदर जो जीनस और स्पीशी की डिस्कशन है ना, वो बतानी है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी। फयाज साहब का ये है कि वो उन्होंने चूंकि बड़े ध्यान से इक्वानास पढ़ा है, तो एसेंस और एक्सीडेंट के ऊपर करें जो उनका है शायद का, वो क्वांटिटी क्वालिटी का है। देखिए मैं इंजीनियर हूँ, जी मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से बायस हो रहा है। नहीं, आपको हम जीनस भी दे सकते हैं, जो कि हम फयाज साहब को दे सकते हैं, नहीं बायसनेस हम फयाज साहब के साथ कर सकते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी मतलब कि लाइक उनकी बात कहाँ कैसे होती है? जी मतलब कि क्वालिटी और क्वांटिटी की इन 3 आर्टिकल्स में बात कहाँ पे कैसे होती है? जी हाँ, ठीक। और जो अतिका है, ये जीनस और स्पीशी हैं क्या, ये एक्सीडेंटल जो है, और इनकी स्टेटमेंट के अंदर 5 मिसालें देके वाज़ेह करें। ठीक है फयाज साहब, शायद कोई मामला ये ठीक है जी, sounds easy enough। उल्टा जी मिरर कर लें के बाद चले आज के लिए फिर इतना ही। कल ये टेक्स्ट पढ़ के आइएगा, फिर हम इस पे तफसीलन जो है वो कब ट्यूसडे को क्लास होगी, ट्यूसडे को लेंगे। कल हम बात करेंगे प्रायोरिटी क्या होती है। खुदा हाफिज़। ओके जी, खुदा हाफिज़। अच्छा, ये कल के लिए है या कि नेक्स्ट वीक के लिए है? ये नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक के लिए, राइट, ठीक है। कल के लिए बस